والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج پرائم ٹائم میں 3 الگ الگ خبریں سناؤں گا، لیکن تینوں خبروں کا تعلق ملک کی سیکیورٹی سے ہے، یہاں کے حالات سے ہے، یہاں کے فرقہ وارانہ تناؤ اور ماحول سے ہے کہ اس سے کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر یوگی حکومت میں کس طرح کے فیصلے پولیس لے رہی ہے اس سلسلے میں تبصرہ ہوگا۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ ہمارے اس طرح کی ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ کنڑا چینل کے ڈیلی ویڈیو نیوز اپلوڈ کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کر کے جو لوگ کنڑا جانتے ہیں اس خبروں کو دیکھیں۔ سیدھی بات کنڑا مارنے سے وہ چینل آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے چینل کے نیچے سب سے جہاں پہ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی لنک پیش کی جائے۔ بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، پہلی خبر ایودھیا کے سلسلے میں ہے۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی تنازع کو لے کر آج سپریم کورٹ میں بروز بدھ ایک اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کی سربراہی والی 5 رکنی بینچ نے بابری مسجد معاملے میں عدالت کی نگرانی میں فریقین کے درمیان مصالحت پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فریقین کو مصالحت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ میں سماعت کے دوران دونوں ہندو فریقوں نرموہی اکھاڑا اور رام للا وراجمان کے وکلاء نے اس تنازع کو ثالثی کے ذریعے مصالحتی کوشش کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ تیسری مصالحت کرنے کے لیے نرموہی اکھاڑا اور رام للا وراجمان جو اکثریتی طبقے سے لڑ رہے ہیں رام مندر کے لیے، انہوں نے ثالثی کے ذریعے ثالثی کرنے کے لیے مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ پوری طرح زمینی تنازع ہے اور اسے ثالثی کے ذریعے حل نہیں کیا جانا چاہیے۔ ادھر مسلم فریقوں کی جانب سے پیش سینئر وکیل راجیو دھون نے ثالثی کی مخالفت نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے ہندو فریقوں کی جانب سے ثالثی سے انکار کیے جانے پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ماضی پر اس کا کوئی زور نہیں تھا، لیکن وہ بہتر مستقبل کی کوشش ضرور کر سکتی ہے۔ آئینی بینچ نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ آج محفوظ رکھ لیا ہے کہ ایودھیا تنازع کا حل ثالثی کے ذریعے ہو یا نہیں۔ آئینی بینچ میں جسٹس گوگوئی کے علاوہ جسٹس ایس اے گوڑے اور جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس ایس عبد النظیر شامل تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سماعت پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل ایک پٹیشن و دیگر اجداستوں پر سماعت کے دوران جسٹس بوبڑے نے فریقین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ عدالت کی نگرانی میں مصالحت کرنے کی کوشش کریں، جس کے بعد چیف جسٹس رنجن گوگوئی و دیگر ججوں نے بھی فریقین کو مشورہ دیتے ہوئے انہیں چند دنوں کی مہلت بھی دی تھی۔ عدالت کے مشورے پر جمعیت علماء ہند کے جانب سے پہلے اس بات کو کہا گیا تھا کہ عدالت کی نگرانی میں مصالحت کے مشورے کا خیر مقدم وہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات الگ ہے کہ اس معاملے میں جب بھی صلح کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں یا اس کا آغاز کیا گیا ہے تو مخالف فریقین نے اپنے اڑیل رویے سے اس کوشش کو ہمیشہ سبوتاز کیا ہے۔ لہذا اگر عدالت اپنی نگرانی میں مصالحت کی کوئی نئی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے جمعیت کی جانب سے تیار رہنے کی بات کہی گئی تھی۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بابری مسجد کا یہ تنازع جو ہے حل ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو متنازع زمین ہے اس زمین پر کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے، ہم لوگ بارہا اخبارات میں اور خبروں میں یہ چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے اس بیچ میں کس طرح کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ الگ الگ انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن دونوں فریقین یہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے، لیکن عدالت ایک جانب یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ثالثی ادا کرے اور نگرانی کر کے دونوں فریقین میں جو ہے مصالحت ہو، لیکن لگتا ہے کہ بات اور آگے بڑھتی جائے گی۔
जबकि इससे कबल ये खबर आई थी कि इसका फैसला 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद ही आएगा। बहरकैफ नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में क्या हम लोग इस पर तबसरा करें, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं और इसमें जो भी तबसरा किया जाएगा वो मुतनाज़ा ठहराया जाएगा, लिहाजा इसका तबसरा मैं आपके हवाले कर देता हूँ। दूसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन, फिर एक मरतबा राफेल का जिन बाहर आ गया है। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक नया धमाका उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वजारत दिफा से किसी ने कुछ दस्तावेजात चोरी कर लिए हैं। सुना आपने, वजारत दिफा से भी अब दस्तावेजात चोरी होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत हसास मामला है क्योंकि इससे मुल्क की सलामती सीधी जुड़ी हुई है, हुकूमत इससे निमट रही है। वाज़ेह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ राफेल मामले पर वज़ीर आज़म को यानी मोदी को पहले ही अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि चौकीदार चौकस नहीं है। अब उनकी जानिब से यह सवाल किया जा रहा है कि चौकीदार कहाँ था कि राफेल से जुड़े दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अर्जी गुजार प्रशांत भूषण और दीगर लोग चोरी हुए दस्तावेजात पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा से चोरी हुए दस्तावेजात का मामला इंतहाई अहम है। इन लोगों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में किसी नए दस्तावेज पर सुनवाई नहीं करेगा। सुनवाई शुरू होते ही वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में नए दस्तावेजात पेश किए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, जब उन्हें पता चला कि राफेल से जुड़े कुछ दस्तावेजात चोरी हो गए हैं तो हुकूमत ने उस पर क्या कार्रवाई की है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी हुकूमत की चोरी पकड़ी गई है। अब यह वाज़ेह हो गया है कि उसमें फ्रांस की कंपनी और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही इन जहाज़ों की कीमत बढ़ाई और उनकी तादाद घटाई है। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिसंबर में राफेल मामले पर मोदी हुकूमत को एक तरह से क्लीन चिट दी थी, लेकिन फिर हुकूमत ने CAG और PAC के हवाले से जो जिक्र किया था उसको सही करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि टाइपिंग में गलती की वजह से पूरे दस्तावेज का मफहूम बदल गया था, इसलिए उसकी वजाहत कर दी जाए। खबर यह भी है कि दस्तावेजात चोरी होने की वजह से अखबार दी हिंदू और प्रशांत भूषण को निशाना बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा है कि इसका मतलब मोदी जी ने चोरी की है, अब सारे कागज गायब कर दिए गए हैं। अगर चोरी नहीं की होती तो कागज गायब करने की क्या जरूरत थी। ऐसा वजीर आजम मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है जो फौज से मुतालिक कागज ही गायब करवा दे। जी हाँ नाज़रीन, अब राफेल को लेकर के एक बार फिर घुमसान है पूरे मीडिया में कि राफेल का आखिर मामला क्या है। वैसे भी गुज़िश्ता 5-6 महीनों से राफेल का मामला बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और फिर पार्लियामेंट में और बाज़ारों में और मीडिया में यही बहस थी, लेकिन अचानक पुलवामा हमले के बाद ये सारे मसाइल दब गए थे। लेकिन लगता है कि 2019 पार्लियामेंट तक ये राफेल का जिन जो है वो बोतल के अंदर नहीं रहेगा, वो दोबारा बाहर आएगा और इसको लेकर के बीजेपी हुकूमत और मोदी हुकूमत पर अपोजिशन जमकर निशाना साधेगी। और लगता है कि सब तमाम पार्टियां जो अपोजिशन में हैं वो पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई हैं और वाकई ये आवाम को हक है कि वो राफेल में जो मामला पेश आया, उसमें जो धोखाधड़ी हुई है, उसमें जो बदउनवानी हुई है, उसके सारे कागजात, उसकी सारी तफसीलात हिंदुस्तानी आवाम के सामने 2019 से पहले आना ज़रूरी है। इसलिए कि 2019 पार्लिमानी इंतखाबात में राफेल का ये मामला बहुत ही बड़ा किरदार अदा करने वाला है। नाज़रीन, तीसरी खबर है यूपी से और बहुत ही अफसोसनाक खबर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में हुए तशद्दुद के मामले में 38 मुल्जिमान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब राहत दे दी है, यानी मुजरिमों को छोड़ दिया गया है। इन तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे में गद्दारी मुल्क की दफात का भी इतलाक किया गया था, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मुबैना गौकशी के नाम पर हुए तशद्दुद में बुलंदशहर के सयाना कोतवाली के इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह का कत्ल कर दिया गया था। जिन मुल्जिमान को राहत दी गई उनमें बजरंग दल रहनुमा योगेश राज, बीजेपी यूथ विंग रहनुमा शेखर अग्रवाल भी शामिल है। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने 2 मार्च को चार्जशीट दाखिल की। वाज़ेह है कि 3 दिसंबर 2018 को सयाना कोतवाली इलाके के गाँव में मुबैना तौर पर गाय की बाक़ियात मिलने के बाद बीजेपी, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने ज़बरदस्त हंगामा किया था। इस दौरान शरपसंदों ने सयाना की चंगरावटी पुलिस चौकी को भी नजर आतिश कर दिया था। इसी तशद्दुद के दौरान शरपसंदों ने इंस्पेक्टर सबूत कुमार को गोली मार दी थी, जिनकी मौके पर ही
मौत वाक़ हो गई थी और रियासत की सियासत में हलचल मच गई थी। इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह कत्ल के मामले में पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कत्ल के मुलजिमान में प्रशांत नट, जानी, डेविड, लोकेंद्र, राहुल शामिल हैं। पुलिस ने प्रशांत नट को 27 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। प्रशांत नट पर इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह पर कुल्हाड़ी से वार करने और बाद में उन्हें गोली मारने का इल्जाम है। इस मामले में कलीदी मुलजिम बजरंग दल के रहनुमा योगेश राज को पुलिस ने तशद्दुद के 1 महीने बाद 3 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया था। उसके अलावा बीजेपी यूथ विंग के रहनुमा शेखर अग्रवाल को पुलिस ने 10 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसकी समाअत मकामी अदालत में चल रही है, लेकिन इस वक्त इनसे गद्दारी, मुल्क की और दीगर बहुत ही अलग अलग दफात को यूपी पुलिस की जानिब से वापस लिए जाने पर, बल्कि उन इल्जामात को ख़त्म कर देने पर यूपी पुलिस एक मरतबा फिर जो है शक के दायरे में आ गई है और महसूस किया जा रहा है कि जो है योगी की हुकूमत में पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुलजिमान को छोड़ दे, और इस तरह की जिसमें एक पुलिस को ही निशाना बनाया गया था उसके मुलजिमान को छोड़ देना ये वाकई काबिल अफसोसनाक है, और इस पर जितने भी सवालात उठाए जाए ये बहुत ही कम है। लिहाजा योगी हुकूमत एक मरतबा फिर कटहरे में खड़ी हो गई है और वहाँ की पुलिस भी कि इस तरह ख़तरनाक मुजरिमीन को आखिर किस तरह वो मुख्तलिफ दफ़ात से बरी किया जा सकता है। बहरकैफ नाजरीन, आप जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लिहाजा जो है अंधेर नगरी चौपट राज का सारी जगह पर, सारे हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल बना हुआ है। जो सही और सच बोलते हैं उनको ट्रोल किया जाता है और जो हुकूमत की तारीफ़ करते हैं उन लोगों की जो है कुर्सियों को आगे बढ़ाया जाता है, उनको इख्तिदार में बिठाया जाता है। ऐसा ही माहौल चल रहा है, लेकिन 2019 तक ही शायद ये महदूद हो जाएगा। इसके बाद अगर हुकूमत चेंज होगी, जहाँ तक महसूस किया जा रहा है कि माहौल बीजेपी के ख़िलाफ़ और बरसर इख्तिदार हुकूमत के ख़िलाफ़ बनता जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियाँ और हज़ारों बल्कि सैकड़ों करोड़ों लोग जो है एकजा हो रहे हैं और अलग अलग किस्म से जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाजात कर रही है। मुमकिन है कि इसका असर साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, आज की प्राइम टाइम का ही पैगाम है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आगे फैलाने में हमारी मदद करेंगे। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والقلم وما